Asif Saeed Khan Khosa, son of Sardar Faiz Muhammad Khan Khosa, do solemnly swear that that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Justice of Pakistan, Chief Justice of Pakistan, as Chief Justice of Pakistan, چیف جسٹس آصف سعید کھوسا عدلیہ کے نئے سربراہ صدر عارف الوی نے 26ویں چیف جسٹس سے حلف لیا. وزیر اعظم کی مبارکباد. تقریب میں تینوں مسلح افواج کے سربراہوں، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، گورنرز اور ججز کی بھی شرکت. بطور چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کا پہلا مقدمہ. منشیات کیس کے مجرم کی سزا میں کمی کے لیے درخواست مسترد. منصف اعلیٰ کی عدالت عظمیٰ آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. مقدمات کی سماعت کے دوران شمالی قبرص کی سپریم کورٹ کے صدر سمیت غیر ملکی مہمان بھی موجود. چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کا شاندار عدالتی کیریئر. 55,000 مقدمات کا فیصلہ. تاریخ ساز فیصلوں کا بھی حصہ رہے. 4 تصانیف وکلاء کے لیے رہنمائی کا اہم ذریعہ. بطور منصف اعلیٰ 11 ماہ 2 دن ذمہ داریاں نبھائیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج اس کے اوپر رولنگ دیں. ایک ہاؤس کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں جو ودن 1 ویک پورے معاملے کی جانچ پڑتال کر کے آپ کی خدمت پیش کرے اور ہاؤس کو جاننے کا موقع ملے. محمد ڈیم کا ٹھیکہ دینے کی تحقیقات کا مطالبہ. عبدالرزاق داؤد کی کمپنی کو کانٹریکٹ دینا مفادات کا ٹکراؤ ہے. مانگے تانگے کا پیسہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر خرچ کیا جا رہا ہے. شہباز شریف کی تنقید. میری غیر موجودگی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے بہت ساری باتیں کی. ان کا جواب میں پیر کو اسمبلی میں دوں گا. محمد ڈیم بنے گا بھی، شروع بھی ہوگا اور ختم بھی ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا باپ بھی اس کو نہیں روک سکتا. شہباز شریف غیر موجودگی میں بہت بولے. پیر کو اسمبلی میں جواب دوں گا. فیصل وابڈا کا رد عمل. کسی کا باپ بھی محمد ڈیم کی تعمیر نہیں روک سکتا. سندھ حکومت گرانے کا ارادہ نہیں، وفاق مدد کرے گا. کام نہ ہوا تو مراد علی شاہ میری نیچر جانتے ہیں. نہ ڈی ریل کر رہے ہیں، نہ ڈی ٹریک کر رہے ہیں، نہ گرانے کی کوئی سازش کا حصہ بن رہے ہیں، نہ بنیں گے. ایک سیٹ کی بھی اگر اکثریت ہے، 6-7 سیٹیں تو بہت دور کی بات آپ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری گورنمنٹ گرا سکتا ہے، کسی کا باپ بھی ورنہ نہیں گرا سکتا. شہباز شریف کی پیمز اسپتال آمد. دانتوں کا چیک اپ. ڈاکٹروں کا کمر درد کے لیے فیزیو تھراپی جاری رکھنے کا مشورہ. اسمبلی میں آج پھر ناٹ پریزنٹ کی گونج. وقفہ سوالات میں اراکین کی عدم دلچسپی. اسپیکر کے لیے کارروائی چلانا مشکل. اگر ہم حلال سیاست کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ ہماری تنخواہیں اس میں بڑھائیں. سیلری اتنی کم ہے اور سارا دن ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. میری کمر رہ گئی ہے. I've got sciatica and I'm not able to rest. Our salaries need to be increased a little bit. باقی اسمبلیوں کی تنخواہیں دیکھیں نا کہاں تک پہنچ گئی ہیں. تو یہ حق ہے. غریب عوام کے منتخب نمائندے بھی غریب. ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا بل جمع. بنیادی تنخواہ 18,000 سے بڑھا کر 3 لاکھ روپے ماہانہ کرنے کی تجویز. نواز شریف کی جانب سے لابنگ کے لیے امریکی کمپنیز کی خدمات لینے کا نوٹس. وزیر اعظم عمران خان نے رقم ادا کرنے کی تفصیلات طلب کر لی. مقدمات پر اٹھنے والے اخراجات کے آڈٹ کا حکم. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس. سی پیک کے خصوصی اقتصادی زون سے متعلق سفارشات طلب. منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت. غربت ختم کرنے کے لیے چین کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. عمران خان کا خطاب. کراچی میں پیپلز پارٹی کا اعلیٰ سطح کا اجلاس. اہم رہنما شریک. ملک گیر عوامی رابطہ مہم چلانے پر مشاورت. جے آئی ٹی رپورٹ کی بنیاد پر حکومتی کارروائیاں بھی ایجنڈے کا حصہ. شہید بھٹو دلوں کے بادشاہ تھے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو دلوں کی رانی تھیں اور انشاءاللہ ہمارا شہزادہ بلاول بھٹو زرداری بہت جلد اس ملک پر حکمرانی کرے گا. دلوں کے وزیر اعظم کے بعد دلوں کے بادشاہ، رانی اور شہزادے کا تذکرہ. حکمرانوں نے بلاول کا نام ای سیل میں ڈالنے کی کوشش کی لیکن منہ کی کھانا پڑی. مرتضی وہاب کی گفتگو.
सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए जंग, ऑपोजिशन का सरबराही न मिलने पर कार्रवाई के बायकॉट का ऐलान। पीएसी की सदारत जियाला ही करेगा, नासिर शाह का इसरार। महकमा एक्साइज सिंध में बड़ी बदउनवानियों का इंकशाफ। 50 से जायद एक्साइज इंस्पेक्टर्स की मुबैना तौर पर जाली डिग्रियों पर भर्ती। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हटाए गए ऑफिसर्स को 4 माह में दोबारा तरक्कियां दे दी गई। चीनी कॉन्सुलेट पर हमले के वक्त पिस्तौल लेकर गश्त, हल्के में जाने के लिए सिक्योरिटी दरकार। विफाकी वजीर फैसल दावडा ने डीजी रेंजर्स और एडिशनल आईजी को चिट्ठी लिख दी। दुनिया न्यूज की खबर पर कराची के इलाके गार्डन वालों की सुन ली गई। वजीर बल्दियात सईद गनी की निश्त रोड आमद, पानी और सीवरेज की लाइनें टूटने पर इजहार बरहमी, फौरी काम शुरू करने की हिदायत। वजीर खारजा से सदर जनरल असम्बली की मुलाकात, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बातचीत। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान का किरदार अहम, मुहाजिरीन के लिए खिदमत भी काबिल तारीफ हैं। मारिया फर्नांडा की शाह महमूद कुरैशी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान को खुसूसी खदशात का मुल्क करार देना मुतासिबाना करार, अमरीका ने सियासी फायदे के लिए कदम उठाया। हुकूमत ट्रंप इंतजामिया से इस मामले पर राबते में है। वजारत खारजा का कौमी असेंबली में बयान। जुल्फें कट कर भी नहीं बेकार, 5 साल में 22 करोड़ रुपए के बाल बरामद किए गए। चीन, अमेरिका, यूएई, हांगकांग अहम खरीदार। तफसील कौमी असेंबली में पेश। NA91 सरगोधा में इंतखाबी मवाद की टेम्परिंग साबित। इलेक्शन कमीशन ने 20 पोलिंग स्टेशन पर 2 फरवरी को दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट की इमारत में धमाचौकड़ी, मुलजिम की जमानत मंजूर होने पर फ्रीकैन में लड़ाई, लाते घूंसे चल गए। पंजाब में सनतों को गैस की फराहमी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। CNG स्टेशन की भी बंदिश। फैसलाबाद के सनतकारों ने सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। टैक्स फाइलर्स के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने विदहोल्डिंग टैक्स खत्म करने का इंदिया दे दिया। 50,000 से ज्यादा रकम बैंक से निकलवाने पर टैक्स खत्म करने का ऐलान मुतवक्के। क्वेटा में बूंदाबांदी, जिसके बाद सर्दी में इजाफा हो गया। पाकिस्तान और ओमान की बहरी मशक़ें, जंगी बहरी जहाज़ों और आबदोज ने भी हिस्सा लिया। फ़ज़ा और समंदर में हदफ को निशाना बनाने का मुजाहरा। सादत हसन मर गया लेकिन मंटो जिंदा है। बेबाक अफसाना निगार को बिछड़े 64 बरस बीत गए। मौशरे की तलखियों को अल्फाज में परोने वाले लिखारी की तहरीरें आज भी मकबूल। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं मरियम ज़ीशान। और मैं हूं मर्दराज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरें तफसील के साथ बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनसे हल्फ लिया। आसिफ सईद खोसा पाकिस्तान के 26वें चीफ जस्टिस की हैसियत से 11 माह 2 दिन अपने फराइज़ मनसबी अदा करेंगे। I, Asif Saeed Khan Khosa, son of Sardar Faiz Muhammad Khan Khosa, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that
Chief Justice of Pakistan. as Chief Justice of Pakistan. सादा और पुरवकार तकरीब हल्फ बरदारी ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई। वजीर आजम इमरान खान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, सूबाई गवर्नर्स, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, विफाकी वज़रा के अलावा आला फौजी और सिविल और मुमताज शख्सियात भी तकरीब में शरीक हुई। तकरीब हल्फ बरदारी से कबल कौमी तराने की धुन बजाई गई। सदर मुमलिकत से इजाजत तलब की गई। Mr. President, may I have your permission to commence the proceedings of the oath-taking ceremony of the Chief Justice of Pakistan? सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस आसिफ सईद खोसा से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ लिया। I, Asif Saeed Khan Khosa, son of Sardar Faiz Muhammad Khan Khosa, Do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. That Chief Justice of Pakistan. As Chief Justice of Pakistan. वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ओहदे का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद भी दी। वैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा के पहले दिन पर नजर डालें तो गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 3 फौजदारी मुकदमात की समाअत की। इस मौके पर 3 गैर मुल्की अदालती सरबराहान भी अदालत में जजेस की निशिस्त पर मौजूद रहे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं फैसल कमाल पाशा। Asif Saeed Khan Khosa, son of Sardar Faiz Muhammad Khan Khosa. I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा का पहला दिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कमरा नंबर 1 में 3 फौजदारी मुकदमात की समाअत की। गैर मुल्की अदालती सरबराहान भी अदालत में जजेस की निशिस्त पर मौजूद रहे। चीफ जस्टिस का बेंच में शामिल गैर मुल्की मेहमानों और अदालत में बैठे लोगों का शुक्रिया। उम्मीद है आपका वीकेंड अच्छा गुजरेगा। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मुकदमात की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट शुमाली कब्रस के सदर नौरेन फर्दी, नाइजीरिया बोर्नो के चीफ जज और भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक सीनियर तरीन जज जस्टिस मैदान भी जजेस सीट पर बरजमान थे। कॉमनवेल्थ जुडिशल इंस्टीट्यूट की गवर्निंग कमेटी की मिसिज साविता लोकर और कॉमनवेल्थ एजुकेशन इंस्टीट्यूट कनाडा की फाउंडर सदर और साबका जज सांद्रा भी अदालत में मौजूद रहीं। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने रोस्टरम पर आकर चीफ जस्टिस को खुशामदीद कहा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहला मुकदमा सुनते हुए मनशियात केस में सजा याफ्ता मुजरिम की सजा में कमी की दरखास्त मुस्तरद कर दी और हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। चेक डिसऑनर के मुकदमे में चीफ जस्टिस ने मुलजिम खालिद महमूद को जमानत पर रिहा कर दिया, जबकि जमानत मंसूखी केस में कासिम जान की दरखास्त वापस लिए जाने की बुनियाद पर खारिज कर दी। वकला कम्युनिटी ने जस्टिस आसिफ सईद खोसा के चीफ जस्टिस बनने पर खुशी का इजहार किया है। सीनियर कानूनदान कहते हैं कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपनी पहली तकरीर में अपना विजन पेश कर दिया है। उनके चीफ जस्टिस बनने से अदालती निज़ाम में बहुत बेहतरी की उम्मीद है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे इस्लामाबाद से अदील वड़ाइच। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। उन्हें कमरा अदालत नंबर 1 में बाकायदा खुशामदीद कहा गया। नए चीफ जस्टिस की आमद पर वकला कम्युनिटी क्या कहती है, उनकी क्या उम्मीदें और क्या तवक्कुआत हैं, नामवर वकला से बात करते हैं। मैं तवक्को करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मुकदमात के निपटाने के हवाले से जो पेशेंट हेयरिंग है वो भी यकीनन इम्प्रूव होगी और फैसले यानी काफ़ी बेहतर होंगे और बहुत सारी पेंडेंसी जो है मुकदमात की उसमें बेहतरी आएगी। पेंडेंसी को ये ख़त्म करने में उन्होंने क्रिमिनल साइड पे जितने केसेस थे पाकिस्तान भर में, मेरा ये ख्याल है कि तकरीबन वो ख़त्म हो गया तकरीबन। बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वी आर वेरी होपफुल और हमें बहुत यकीन है कि जो उनका पीरियड है उसके दरमियान हमें रूल ऑफ लॉ के हम इंशाअल्लाह ताला उसकी बुलंदियों के ऊपर जाएंगे और लोगों को इंसाफ मिलेगा, सस्ता इंसाफ मिलेगा और सहल इंसाफ मिलेगा और लोगों की जो है ना तवक्कुआत जो है ना क्योंकि उनके ऊपर पूरे पाकिस्तान के अदलिया की जिम्मेदारी है
और लिटिगेंट से लेकर जज से लेकर ऊपर जो है जुडिशरी के पूरे सिस्टम को ठीक करना उनकी ज़िम्मेदारी में आ गई है। तो मैं समझता हूँ उनके डायनामिक शख्सियत को सामने रखकर हम उम्मीद कर सकते हैं पाकिस्तान एक बेहतर सुबह, बेहतर कल और बेहतर मुस्तकबिल देखेगा। तो ये खोसा साहब जो हैं ये बिल्कुल जो कल उनकी जो तकरीर थी उन्होंने अपने आप को बिल्कुल वाज़ह कर दिया। जो लोग नहीं भी उनको जानते थे वो अब जानने लगे उनको कि इसलिए बिफोर एंटरिंग इनटू दैट ऑफिस उन्होंने अपना एक्सपोजर बिल्कुल कर दिया है कि मेरे माइंड में क्या है, मैंने करना क्या है और यहाँ पर किन किन बातों की ज़रूरत है। जो चीफ जस्टिस नीचे से वकालत करके ऊपर उठ के आया हुआ हो वो नीचे रिफॉर्म्स कर सकता है, ऊपर के मसाइल उनके इल्म में होते हैं। दूसरा ये कि ये एक स्कॉलरली आदमी है, ये कोई स्ट्रक्चरल चेंज मैं देख रहा हूँ ये लाएंगे। वकला कम्युनिटी नए चीफ जस्टिस की आमद पर बहुत खुश है। नामवर कानूनदान तवक्को लगाए बैठे हैं कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा का चीफ जस्टिस बनना निज़ाम अदल में मुस्बत तब्दीलियां लाएगा। कैमरामैन जावेद कुरैशी के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मोहम्मद डैम के ठेके को पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करार देते हुए हाउस कमेटी बनाकर तहकीकात का एक मरतबा फिर मुतालबा किया है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि मांगे तांगे का पैसा आंखों पर पट्टी बांध कर खर्च किया जा रहा है। अवाम और ऐवान को हकीकत जानने का हक हासिल है। इस मौके पर वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वावडा मौजूद न थे, जिस पर वजीर तवानाई उमर अयूब ने बताया कि फैसल वावडा ही इस मामले पर शहबाज शरीफ को जवाब देंगे। मोमेन डैम के ऊपर मैंने बड़ी तफसील से गुजारिशात की थी और ये मैंने जो पेपरा रूल्स हैं उनसे साबित किया था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है पीटीआई की गवर्नमेंट ने 800 मेगावाट का जो पन बिजली का मंसूबा है दराए सवाद के ऊपर, ये पेपरा रूल्स की जो स्पिरिट है उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। कानून इजाज़त देता है तो वो इजाज़त देता है, लेकिन उसकी जो स्पिरिट है और उसमें जो बताया गया है कि अगर सिंगल बिड है तो आपके लिए जो प्रेफर्ड ऑप्शन ये है कि आप दोबारा बिडिंग में जाएं। ह्यूजली ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है बड़ा शार्प कि सिटिंग एक मुशीर हैं रज़ाक दाऊद साहब, मेरी उनकी ज़ात से कोई मुझे इख्तलाफ नहीं है, मेरे वो बल्कि वो मेहरबान हैं, लेकिन ये बात ज़ातियात की नहीं, इंडिविजुअल्स की नहीं, ये पाकिस्तान के अवाम का 309 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है आंखों पे पट्टी बांध कर कि जो लोगों का जो इंटरेस्ट है ये मांगे तांगे का पैसा, हर पाकिस्तानी का ये हक है वो जानना कि भाई ये किस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जा रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आज इसके ऊपर रूलिंग दें, एक हाउस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें जो विदिन 1 वीक पूरे मामले की जांच पड़ताल करके आपकी खिदमत पेश करे और हाउस को जानने का मौका मिले। जनाब स्पीकर, मैं चाहूँगा कि ये फैसल वावडा साहब रेलेवेंट मिनिस्टर है और ट्रैवल कर रहे हैं इस वक्त, तो वो आ जाएंगे और कंप्लीटली हाउस को वो इन कॉन्फिडेंस भी लेंगे और पहले भी उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्टेटमेंट भी दी थी और आके फिर भी देंगे और जो करंट सिचुएशन है वो भी बताएंगे। दूसरी जानिब फैसल वावडा ने आसिफ अली जरदारी के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि आसिफ जरदारी ने ठीक कहा, पीटीआई 5 नहीं बल्कि 15 साल पूरे करेगी। कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई उनकी हुकूमत नहीं गिरा सकता। मोहम्मद डैम हर सूरत बनेगा, सिंध हुकूमत गिराएंगे ना ही साजिश कर रहे हैं। वफाकी वजीर कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक सीट की भी अगर अक्सरियत है, 6-7 सीटें तो बहुत दूर की बात आप कर रहे हैं। अल्लाह ताला तो हमारी गवर्नमेंट गिरा सकता है, किसी का बाप भी वरना नहीं गिरा सकता। जरदारी साहब ने बहुत सही बात की है, वो सही कह रहे हैं कि हम 5 साल थोड़ी हुकूमत पूरी कर रहे हैं, 15 साल कर रहे हैं। हम सिंध गवर्नमेंट को ना डीरेल कर रहे हैं, ना डिट्रैक्ट कर रहे हैं, ना गिराने की कोई साजिश का हिस्सा बन रहे हैं, ना बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस अच्छे जेस्चर को अच्छे जेस्चर की तरह लिया जाएगा। अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं हुई तो मैं अपने भाई मुराद अली शाह साहब को बताना चाहता हूं कि फिर थोड़ी बहुत वो मेरी तबीयत भी जानते हैं, मैं अपनी नेचर के ख़िलाफ़ जाके बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ। खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो आजकल मौला जट का रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी गैर मौजूदगी में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने बहुत सारी बातें की
उनका जवाब मैं पीर को असेंबली में दूंगा। मोहम्मद डैम बनेगा भी, शुरू भी होगा और ख़त्म भी होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला के अलावा किसी का बाप भी इसको नहीं रोक सकता। हर चीज़ का टाइम लगेगा। हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है कि हम हिलाएंगे सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। दिलों के वजीर आजम का जिक्र तो आपने सुना होगा। दिलों का बादशाह, रानी और शहजादा कौन है? जयाले रहनुमा मुर्तजा वहाब ने इस राज से पर्दा उठा दिया है। कराची में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत को दिलों के शहजादे बिलावल का नाम ईसिल में डालने की कोशिश पर यू टर्न लेना पड़ा। हुकूमत को वक्त देना चाहते हैं ताकि इसका निकम्मापन और वाज़ेह हो जाए। शहीद भुट्टो दिलों के बादशाह थे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दिलों की रानी थी और इंशाअल्लाह हमारा शहज़ादा बिलावल भुट्टो ज़रदारी बहुत जल्द आप देखेंगे कि अमली तौर पर इस मुल्क पर आइन के ताबे होते हुए आवाम की सरबुलंदी करते हुए इस मुल्क पर हुक्मरानी करेगा। मैं समझता हूँ किसी फ़िरौन ने कोशिश की थी दिलों के शहज़ादे को ECL में डालने की और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि पूरी पाकिस्तानी कौम ने उस चीज़ के ऊपर रिएक्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया और इस हुकूमत को मुँह की खानी पड़ी, यू टर्न लेना पड़ा। मैं गुजारिश करना चाहूँगा इन फ़िरौनों से कि प्लीज़ अपने जो अहकामात पास करते हैं वो आइन और कानून की रोशनी में और चीज़ों को देखने के बाद परखने के बाद क्या करें। मैं समझता हूँ जो लोग फ़ोटो सेशन के लिए किसी घर से निकल के CNG स्टेशन गए थे और गाड़ी चलाने की कोशिश की थी, मैं समझता हूँ ये सवाल उन लोगों से पूछें कि कब तक वो तस्वीरें खिंचवाने के चक्कर में आवाम को बेवकूफ़ बनेंगे। सिंध हुकूमत उसूली तौर पर बार बार कहती रही है कि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 158 इस बात की यकीन दहानी करता है कि जिस सूबे के अंदर गैस दरियाफ्त होगी उस सूबे के रिहायशियों का पहला हक होगा। इस आईनी शिक के बावजूद ये नाकाम निकम्मी हुकूमत ने सिंध की आवाम को गैस की लोड शेडिंग दी है। अब अरकान पंजाब असम्बली की भी सुनिए। तनख्वाहों में इजाफे के लिए एक प्राइवेट बिल पंजाब असम्बली में जमा करा दिया गया है। बुनियादी तनख्वाह में इजाफे समेत 6 मरात में इजाफे के लिए तरामीम तजवीज़ की गई हैं। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का मामला। पहले अवान में किया तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा, अब बाज़ाब्ता प्राइवेट बिल असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया गया। प्राइवेट बिल PTI के रुकन पंजाब असम्बली गुज़नफर अब्बास छीना की जानिब से जमा। बुनियादी तनख्वाह 18,000 रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपए माहाना करने की तजवीज़। डेली अलाउंस 1,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपये करने का मुतालबा। कन्वेंस अलाउंस 600 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की तजवीज़। एडिशनल ट्रैवलिंग अलाउंस 1,20,000 सालाना से बढ़ाकर 5 लाख रुपये सालाना करने की तजवीज़। हाउस रेंट 29,000 माहाना से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने की तजवीज़। यूटिलिटी अलाउंस 6,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने का मुतालबा। तवाज़ो अलाउंस 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये तक करने की तजवीज़। कायमा कमेटी के चेयरमैन के लिए माहाना पेट्रोल अलाउंस 30,000 रुपये माहाना करने का मुतालबा। गाड़ियों की मरम्मत का अलाउंस 12,000 रुपये माहाना करने की तजवीज़ भी बिल में बाज़ाब्ता तौर पर दे दी गई। प्राइवेट बिल में तजवीज़ करदा इजाफा मान लिया गया तो अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाह तमाम सूबाई असम्बलियों से ज़्यादा हो जाएगी। कैमरामैन सुल्तान महमूद के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.